Good evening. Back to 9:30. And the last few days I've been thinking, should I continue with this program or should I stop it? And the minute I said, oh, I don't want to continue any further, last 3 days have been very tough on making this decision. And July is coming. So today is the last day of the month. And then Mumbai goes and announces again that it's going to be not an easy next month for us, because till the 30th, I believe the cars cannot go beyond 2 kilometers and stuff like that. To be really honest, it kind of put me in a very difficult place, because I was really looking forward to my freedom and moving around, though I knew that I wouldn't be moving around this thing. And at the same time, I think it's the most sensible decision government has taken, because the rate of corona has actually increased. And I was talking to Dr. Nivedita, and she confirms that every day we are hearing more people coming down with corona. And I'm very, very lucky that at the time, on one end, I'm thinking, should I continue? And then I got a call from a speaker from Cyprus who is so willing to do work for us. So then I'm thinking, universe is providing me with the speakers. I'm not doing anything special during this time. So why am I getting into whether people are there, not there, what's happening, what's not happening? Let's just give it a try, and let's just continue for as long as we can. And the day I feel too exhausted, too tired, I probably will say, okay, thank you so much. Let's reduce the number of sessions. And I'm sure all of you will understand effectively why that is happening. So today's session number 110, we have 3 different speakers, Ramzan Khan, and then we have Lakshman Bhandari. And the third speaker is Dr. Nivedita, who is going to be talking to us about eye and vision problems. And I'm sure all the 3 programs are going to be amazing. I have actually recorded Ramzan Khan because he was very scared to come live. Today is the first time he's actually braved it on the Zoom with all of you, so that if you have any questions, he can answer. But his program is going to be recorded. We are first going to go with our beautiful reading. How do you say? A beautiful person on the forum, Binaifa. She's going to be doing Kaudi reading for us, which is reading with shells. I really am thankful to each and every one of you to join in, because when you guys are not here, then I really do feel, who am I running the show for and why am I doing it? I'm not doing this for numbers, guys. I'm doing it because I really feel this is required. For the last 10 years that I've been in my profession and in India, I haven't done anything like that. And I would have never done anything like that. But this is so that if anybody is sitting at home feeling very sad, you have a place to detox yourself. You have a place to turn to talk to someone. And that's the only reason that these programs have been running. Over to Binaifa. Binaifa, we have all the 3 speakers today on the forum right now. We will first start with Ramzan Khan's Kaudi reading, then, yes, and then Lakshman Bhandari, and then Dr. Nivedita. So thank you so much. Thank you. Thank you, Anu. Hi, Ramzan. Any questions? I think so. तुम्हारे नहीं? ऐसे ही कर दूं? हाँ बिल्कुल. Okay, so first 2 sessions are going to be in Hindi today, and the third session is going to be in English. If anybody is going to have problem in English, and I can I ask someone to keep typing on the chat in English so that it's easy? Parul, could you do that, bacha? Yes, ma'am, sure. Thank you so much. I really appreciate. Ramzan, जी. for you, मुझे आया है कि ना आपको हेल्प मांगनी चाहिए. आप कभी-कभी बहुत इतराते हैं हेल्प मांगने के लिए, तो आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे और वो हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं. आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिल सकता है, बट वो खाली आपको हेल्प
मांगने की ज़रूरत है। और आप जो भी आप इबादत करते हैं आप कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज उससे आपको और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपको जो स्ट्रेस होता है कभी कभी कि कुछ ठीक से नहीं हो रहा है, घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बाहर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो जो भी आप इबादत करें, जितना भी वक्त मिले आप कीजिए, उससे आपको बहुत बहुत आगे फर्क पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो जरूर, मच। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। थैंक यू। बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर के साथ, लक्ष्मण भंडारी जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लक्ष्मण जी, कोई सवाल है आपके पास? लक्ष्मण, okay, do you have any question for our Kaudi leader Hi, Binaifa? everyone. Hi. Thank you so much inviting me on your show. Thank you. आपके पास कोई सवाल है Binaifa के लिए कि she can go straight away and do whatever is required? Yes, we can go directly, no issue. Thank you. Okay. आप बोल सकते हैं। तो आपके जो मनी ब्लॉक्स है वो आस्ते आस्ते करके खुलने वैसे लगे हैं। रियली तो अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ये टॉक शो ये शुरू किया है लाइव, एंड यू आर providing the platform, very good platform. So really I will like to congratulate Anu ma'am and your team doing this great efforts. Thank you जी। हाँ जी Binaifa, बताइए सर जी को कि मनी ब्लॉक्स का क्या होने वाला है। तो मनी ब्लॉक्स आस्ते आस्ते आपके खुलने लगेंगे, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या रीजन है ब्लॉक के लिए। तो just go within yourself and try to find out what is it. Is it your own self that is blocking it? क्योंकि आपको रिसीव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, किसी से मांगने में दिक्कत होती है, और इसीलिए पैसे नहीं आ रहे हैं। तो just work on that, work on yourself. आप जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, वो थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, तो एटलीस्ट जो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एंड दैट इन इटसेल्फ विल अट्रैक्ट अबंडेंस। और फैमिली में भी अभी थोड़ा हैप्पी टाइम आएगा, थोड़ा ब्राइटनेस आ रहा है विद द फैमिली, वेयर यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद देम। वहाँ पे भी थोड़े मैसेजेस आपको मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे फैमिली लाइफ आपकी बेहतर हो। So follow your intuition and it will be great. Thank you. Wonderful. So next, let's go to Dr. Nivedita. Do you have any question, Dr. Nivedita? Thank you. Okay, Binaifa. Yeah. Okay, tell me in the near. I mean, I have more opportunities abroad. I have more opportunities in India because I am actually considering probably shifting base out of India. Okay. So what is your take on that? Yeah. Sure. It's a definite yes. Okay. Wow. And it's amazing because the Kauri of travel has come absolutely close to, like, we have a system of working that. So we have one seeker. Okay. And the seeker tells us the answers, and the other one is the pictures which are there. So the travel Kauri is actually touching the seeker, so which the answer is a definite yes. Okay, great, lovely. So you might have some issues at home regarding this, maybe moving with family or trying to convince them to move. So you have to work around that, and don't take the direct approach which you think, okay, this is the obvious approach and I will tell them like this, and this is how either they agree or don't agree. No, change your strategy, think of what you want to say, how you want to say it, change your perspective about quite a few things, then only it's going to be easy. Okay. But you will go, yes. Great. So my family is Anu, so Anu, you better be ready for it, okay? दोनों इकट्ठे चलते हैं। Okay. Thanks, Binaifa. Thank you, Binaifa. Let's do one reading for the whole group. Yeah. Thank you.
Okay, so for the entire group, I'm getting focus on family, focus on being together and being there for each other, pray for each other, and try to get more into the spiritual side. Whatever little you can do, even putting on some spiritual music in the background will also help, because that is how it's going to increase our vibrations and just keep our family happy. Right now, that's what we need, to be happy. That is what increases our vibration, and if our vibrations are high, nothing can touch us. No disease, no corona, nothing can touch us. It's all in the mind. So please just keep your vibrations high, keep yourself very positive, and that's how, you know, we are all going to survive this. Thank you. Absolutely. It sounds like जो डर गया सो मर गया. Yes. True. तुम डरे तो समझो your time has come. Then corona तुम्हारे को करके जाएगा. Sorry for me getting little obnoxious with corona. Okay, so I'm going to thank you so much, Binaifa, for that Thank lovely you, Anu. readings. Thank you. I'm going to go straight for the recording that I have done with Ramzan Khan. He's here. But literally we have spent 2 days trying to do this recording because he was rather nervous about being over here. And it's all going to go in Hindi today. So if anybody does not understand, Parul is translating for everybody on the chat, and you can go on the chat and hear whatever is being said. So I'm right now sharing what we have. So let's start. Hello, good evening, everybody. I'm Dr. Anu Mehta. I'm interviewing today Ramzan Khan. Worked at my place for about 9 years. He drives me around. And actually, मैं सच कहूँ तो much more than I can call him a driver, because he's someone who's taking care of me when I've been so unwell and I have not been able to take care of myself. Not only that, he's been someone who's been a complete companion at workplace. Someone who सोचा नहीं कि अरे मेरे सिर्फ काम सिर्फ ये था, आपने मुझे एग्जीबिशन में कैसे खड़ा कर दिया. He didn't say any of that. We've stood in the exhibitions and sold things together. He's carried my stuff up and down. Never a complaint, never a holiday, never saying that, you know what, today you manage yourself. I've never heard. Very rarely would he ever say that I'm not going to be there for work. And I just thought that we've covered all the different people. And I feel that if I don't cover him right now on this program, I will be actually not completing the whole stuff altogether. So thank you, Ramzan, for being there in my life. Thank you for being a beautiful person that you are. I just wanted to ask you, can you tell people, how did you get into your profession of being a driver? Basically, आप driver कैसे बने? तो ऐसे है, मुझे बचपन से शौक था गाड़ी चलाने. आई लव कार. मुझे कार देख के इतना खुशी मिलती थी जब मैं छोटा था. तो बस मेरा यही था कि मुझे कार चलाना है और कार चलाना. तो मैं बड़ा हो गया थोड़ा, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कार ही चलाना, तो मेरा पैशन बन गया. तो मैंने उसमें वैसे एग्जीक्यूट भी किया और बहुत अच्छा किया. मैंने मेरा खुद का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस खड़ा कर दिया. मेरे पापा ने मुझे एक कार लेके दी. उसके बाद मैंने खुद ने ही उस पैसे से कमा के मेरा खुद का पूरा एक बिजनेस खड़ा कर दिया. When I was 18. Wow. By the way, मैं ना जब 16 साल का था, जब से मैंने मेरा काम शुरू कर दिया. और 16 साल के थे आप सिर्फ? हाँ, मैं जब 16 साल का था, मैं जब से कार चला रहा हूँ. और जब मैं 18 साल का हो गया, 18 साल का, तो जब तक तो मेरा खुद का बिजनेस खड़ा हो चुका था. और मेरे पास एक्चुअली 8 कार हो चुके थे उस वक्त तक, और बहुत अच्छा जा रहा था मेरा बिजनेस. कितने साल चला आपका बिजनेस, रमजान? हम 6 साल मैंने खुद चलाया और बहुत अच्छा चलता था. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा. वो मेरा पैशन था.
बड़े लोग कहते हैं अगर आपका जिस चीज में दिल लगे वो काम करो तो बहुत आगे जाता है। और वो मैंने सही में ऐसा सही, ये तो बात सही है कि आपका जिस चीज में दिल लगे वही करना चाहिए, और मैंने वही किया था और बहुत अच्छा था। तो पढ़ाई नहीं है इसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई आप? हाँ, उस वक्त नहीं, उस वक्त तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, बट अभी सोचता हूँ कि कर लेनी चाहिए थी पढ़ाई भी, तो इसके साथ में ऐड हो जाता। काम सही तो है। मैं फिर भी यही करता, बट वो ऐड ऑन होता ऊपर। तो काम आपने बंद कर दिया, क्यों बंद किया रमजान? हाँ हाँ, मेरा बिजनेस तो थोड़े टाइम के बाद क्या है ना, अब मेरे पास 8 कार थी और मेरे पास 8 ड्राइवर थे और मैं खुद भी एक था। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। मेरे ड्राइवर लोग शायद जानबूझ के कर रहे थे या ऐसे ही हो रहा था, उनसे पता नहीं। हाँ, गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खराब हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था मतलब। और मैं अकेला बंदा, मतलब हर जगह नहीं हो सकता। गाड़ी कहीं कहीं टूर्स एंड ट्रैवल्स का मतलब हर जगह जाती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाती है गाड़ी। तो गाड़ी वहाँ चली गई, खराब हो गई, मैं बहुत परेशान होने लग गया था बेसिकली ड्राइवर से। तो मैंने धीरे धीरे करके फिर वो सारी कार बेच दी, तो मैंने खुद के लिए एक जॉब ढूंढ ली। अब तो उसमें मुझे आप मिल गए, मेरा लक अच्छा था कि आप लोग मिल गए, और आप लोग बहुत बहुत अच्छे। तो रमजान, जब आप आए थे मेरे पास तो आपने मुझे बाद में बताया कि आप 2.5 महीने से ऊपर मेरे पास काम नहीं करने वाले। हाँ, मैंने यही सोच के आया था, क्योंकि उस पीरियड में जब मैं आपके पास आया था तब बारिश शुरू हुई थी। मैंने कहा ठीक है, ये बारिश तक कर लेते हैं। फिर गाड़ियाँ तो घर पे ही खड़ी थी उस वक्त। मैं सोचा ये बारिश तक कर लेते, क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल्स का बारिश में थोड़ा सा लोड नहीं होता, मतलब काम थोड़ा ठंडा रहता है। तो मैंने कहा चलो बारिश तक यहाँ कर लेते हैं काम, फिर उसके बाद अपना फिर शुरू कर लेंगे। तब फिर मुझे 2 महीने में मेरा दिल लग गया, फिर मेरा मन ही नहीं किया कि वापस जाके अपना बिजनेस शुरू करूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके वो गाड़ियाँ बेचनी शुरू कर दी। बेच के तो ठीक है, अभी यहीं सेट हो जाता। तो रमजान, ये 9 साल जो तुमने मेरे पास बिताए और पहले जो आपने काम किया, इन दो चीजों में बहुत फर्क होता है। किसी के लिए काम करना और खुद का काम होना, ये दो बहुत अलग चीजें होती हैं। इसमें आपको कोई अंतर महसूस हुआ, कोई तकलीफें आई जहाँ पे कुछ ऐसा इसमें आपको लगता है कि लोगों को बताना जरूरी है? क्योंकि लोग ट्रांजिशन करते हैं कई बार, किसी के यहाँ काम करने से वो जाते हैं दूसरे के यहाँ काम करने के लिए। कई बार उल्टा होता है, जैसे आपके आपके साथ हुआ। तो ये ट्रांजिशन के वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और कैसे अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे है ना, जब आप बिजनेस करते हो ना तो आप खुद के बॉस होते हो, हम्म, और आप किसी के पास जॉब करते हो तो आपके ऊपर कोई बॉस होता है। हाँ, तो यही है कि उस चीज को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसी कहावत सुनी होगी आपने। तो वो उसे ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, और बिजनेस एक अलग चीज होती है और किसी के लिए जॉब करना एक अलग चीज होती है। तो इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सैलराइड पर्सन होता है उसकी सैलरी फिक्स होती है, और बिजनेस का ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कभी ऊपर जाता है आदमी, कभी नीचे जाता है। तो वो उधर थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और जो इधर जॉब करते हैं वहाँ रिस्क फैक्टर कम होता सही है। तो कह बस रहे यही है। हो। वैसे तो अपनी चॉइस है ना। हाँ बिल्कुल। तुझे ड्राइविंग करनी इतनी पसंद है, पिछले 3 महीनों से कोई ड्राइविंग हुई नहीं है। हम्म, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हुई भी होगी तो शायद किसी दोस्त की उठा के चला ली या वैसे कर लिया तो अलग बात है, पर didn't have something to come back to। ये 3 महीने का वक्त कैसे निकला? ये बहुत हार्ड था। मैंने बहुत मिस किया है मेरी कार को। आई होप जल्दी से ये खुले और मैं जल्दी पहुंच जाऊँ उधर। आई मिस माई कार। और ये बहुत हार्ड टाइम सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए।
कार्स तेरे को इर्द गिर्द क्या देखा तूने जो तू कह रहा है कि हार्ड है? ऐसा कुछ तो देखा होगा तूने अपने आसपास जिससे तू देख के कह रहा है कि लोगों के लिए ये हार्ड वर्क है, मेरे लिए भी हार्ड था, पर लोगों के लिए हार्ड वर्क। ऐसा क्या तुझे अपनी सराउंडिंग में दिखाई दिया? तो ऐसे है ना, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ लोग रोज काम करते हैं और रोज कमाते। कोविड-19 से सारा कुछ बंद है। लास्ट 3 महीने से ज्यादा हो गया। आज 3 महीने 4 दिन हुआ। 96 डेज हो चुके हैं अभी। ये सब बंद है, उनके पास पैसे नहीं आ रहे। ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड टाइम है। मेरी तो सैलरी फिर भी चालू है, मैं घर में बैठा हूँ आराम से। बस लोगों के पास नहीं है, उनको खाने के लिए, उनकी बेसिक नीड के लिए पैसे नहीं। लोग एकदम टूट गए अंदर, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत हार्ड। रमजान, आपका एक और नाम भी है, क्या नाम है? समीर खान। तो तूने 2 नाम क्यों रखे? ये देखो ऐसे है, जो रमजान नाम है वो मेरे दादाजी का नाम है। तो वो जब एक्सपायर्ड हो गए उसके बाद मैं पैदा हुआ, तो मेरे पापा ने मुझे वही नाम दे दिया। और वो लोग मुझे उस नाम से इसीलिए नहीं बुलाते कि वो मेरे दादाजी का नाम, वो इसीलिए वो लोग मुझे प्यार से समीर बोलते। ओके, ठीक। रमजान, तूने मेरे साथ रह के काफी पढ़ाई भी करी, लोगों को बता सकते हो कि क्या क्या पढ़े हैं? मेटा हेल्थ पढ़ा मैंने, लूशो कलर टेस्ट पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, ईएफटी पढ़ा, और क्या कलर थेरेपी पढ़ी, ड्राइंग का पढ़ा। मतलब बेसिकली सब कुछ पढ़ लिया, जो जो आपने पढ़ाया सब कुछ पढ़ लिया। और काफी डेलीगेट्स भी आते हैं मेरे बाहर से, उनके साथ तू इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, कैसे मैनेज किया? क्योंकि सारी पढ़ाई तो इंग्लिश में हुई थी। हाँ, मुझे आती है इंग्लिश, मुझे थोड़ा सा बोलने में तकलीफ होती है, बट ऐसे में तो सब आता है। और जो आपके डेलीगेट्स आते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। इन लोग ने बहुत अच्छे से हर चीज मैनेज करी मेरे साथ, मैंने भी उनके साथ। एक अच्छा रैपो बन गया हम लोगों में, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। फ्रेंड के जैसा मिलते हैं आपके सारे दोस्त, बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत इज्जत भी करते हैं। तो अच्छा लगता है, मन करता है उनसे बात करने का, दोस्ती करने का। ये सब पढ़ाई करने के बाद तुम्हारे नजरिए में कुछ फर्क पड़ा? हाँ, हाँ बिल्कुल पढ़ा, क्योंकि मैंने उस नजरिए से अपनी जिंदगी को अभी देखना शुरू किया। तो बहुत सिंपल हो गई है अभी मेरी लाइफ, और बहुत बेहतर भी हो गई पहले से। क्या बहुत फर्क, कैसे बेहतर हुई? क्या क्या फर्क है नजरिए में? नजरिए में ये फर्क है, मैं पहले सोचता था बस ये चीज ऐसी नहीं होगी वैसी होगी, लेकिन जब वो पढ़ाई करी मैंने, उस नजरिए से देखना शुरू किया है ना। चेहरे पे एक पिंपल आता है तो हम मेटा हेल्थ करते हैं, तो उसके बारे में सोच के तो हाँ ये ऐसा हुआ होगा, ये या पापा ने कुछ बोल दिया होगा या मम्मा ने कुछ बोल दिया होगा, ये तुम्हारी टेरिटरी है। तो वो सब चीज मैं एनालाइज करने लग जाता हूँ, चीज तो समझ भी आ जाती है, तो फिर लगता है हाँ ये ठीक ऐसा हुआ। तुझे याद है एक दिन कार में मैं बैठी थी तो बहुत सारे मेरे बाल टूटे हुए थे, हाँ, तो तूने मेरे को हंस के क्या कहा? हाँ, आपको ऐसे लगता है सेपरेशन सेपरेशन सिंड्रोम? सिंड्रोम हो गया बता सकते। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि तूने इन चीजों को पिकअप करना शुरू किया, और इसमें आज कोविड-19 के टाइम पे इसकी वजह से डर कुछ कम हुआ? हाँ, मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं ज्यादा टाइम मतलब घर में ही था, तो मतलब दोनों फैमिली की तरह। बस उसमें एक चीज थी कि एक चीज का ध्यान रखना था, आपको हाथ पैर अपने धोते रहने चाहिए ना, तो ये ऐसी चीज को टच नहीं करना। मैंने बस वो किया और मुझे डर तो बिल्कुल। तुम्हारी बिल्डिंग में कोविड-19 के पेशेंट्स थे? हाँ थे, फर्स्ट फ्लोर पे। कैसे मैनेज किया? हाँ, नीचे लॉक कर दी थी सोसाइटी ने वो गेट, उतरने ही नहीं दिया फिर किसी को। बट उस चीज का ही ध्यान रखा था कि
कहीं जाए जाए तो कोई चीज को हाथ ना लगाए, इधर उधर छुए ना। तब भी डर नहीं लगा? नहीं। कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा कोट आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी को बड़े अच्छे से बयान कर सकता हो? तो देवानंद साहब का एक गाना है, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। आप हो ना मेरे साथ, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं लाइफ। थैंक यू रमजान। चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? क्योंकि हमारी पढ़ाई में ये बोला जाता है कि जो बचपन में हम एक्सपीरियंसेस जिनके थ्रू गुजरते हैं वो हमें बड़ेपन में हमें बनाते हैं या तोड़ देते हैं। कुछ चीजें मेरे माँ बाप ने भी करी होंगी जो अच्छी थी, कुछ खराब थी। अक्सर लोग सारी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में गुजारते हैं। आपका एक्सपीरियंस आपके माँ बाप के साथ कैसा? मेरे पापा के साथ तो इतना अच्छा नहीं था, हमें उनसे डर लगता था बहुत। हाँ, बट मॉम के साथ ठीक था। तो हम हमारे सारे काम अपने मॉम से ही कराते थे, क्योंकि पापा से तो हम डरते थे, हम उनसे बात ही नहीं कर पाते थे। तो बस वही सोच के थोड़ा सा डर लगता था उनसे बहुत ज्यादा। तो आगे भी लाइफ वैसे ही चल रही है, अभी तक भी उनसे डर ही लगता है। पता नहीं क्यों। हाँ, डर तो उनसे लगता तो रमजान तो एक्चुअली बनना ड्राइवर नहीं चाहता था, कुछ और बनना चाहता था, तुझे याद है? है। मुझे याद है। क्या क्या बनना चाहता था? मैं क्रिकेटर बनना। क्यों नहीं बना? ऐसा है, किसी ने सपोर्ट, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, किसी ने नहीं, मेरे पापा ने मुझे। जितने पापा लोग हैं सब जगह और जितने बच्चे लोग हैं, इंक्लूडिंग तू भी पापा है आज 2 बच्चों का, तो क्या कहेगा तू पापा लोग को? क्योंकि तूने बहुत अच्छी बात करी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी, मेरे फादर की जरूरत। अगर तेरे फादर तेरे साथ खड़े हो जाते तो शायद तू खुदा को भी पा जाता। तो क्या कहना चाहेगा लोगों से? तो प्लीज 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 अपने बच्चों को सपोर्ट करो और देखो उनकी उनका पैशन किस चीज में, उनको क्या चीज पसंद है, उसको वही करने जो दो, उसको जो पसंद है। मुझे अगर मेरे पापा ने थोड़ा सपोर्ट किया होता तो शायद आज मैं इंडियन क्रिकेट टीम में। इंशाल्लाह। दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे तो ये ये कोविड-19 के टाइम पे? कोविड-19 का बहुत टफ टाइम है। प्लीज 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 अपने आसपास के लोगों की मदद करें। आपसे जो भी सूरत में हो सकता है, उनकी जैसे हेल्प हो सकती है प्लीज करें। तो कोई आ नहीं रहा किसी की मदद करने, तो प्लीज आपके आसपास जो भी जैसा भी हो, अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज करें। क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कुछ नहीं है, सबका सब चीज खत्म हो चुकी है। लोग काम पे नहीं है, 3 महीने से ज्यादा हो गया है, ये सब कुछ बंद हो गया। तो फिर भी मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि प्लीज प्लीज कैसे भी हेल्प करें, जो सूरत में हो सकते सूरत में। जो दूसरे लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि काफी लोग आज निराश होकर अपनी जान देने लगे हैं। फिल्म इंडस्ट्री तक में सुना है हमने कि लोग जीना नहीं चाहते, क्योंकि शायद पैसा जिंदगी से ज्यादा बड़ा हो गया या दुख दर्द इतना ज्यादा हो गया कि लोग जीना नहीं चाहते। तो आप सबको क्या कहना चाहिए? प्लीज ऐसा कुछ करे ना। हाँ, माना ये हार्ड टाइम है, प्लीज अपने आप को संभालें। आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली रोती है, आप तो चले जाते हो जो कुछ भी करके, आपके पीछे वो दर्द आपकी फैमिली को ही होता है। तो ऐसा कुछ ना करें, अपने आप को संभालें। ये हार्ड टाइम है, सभी के लिए हार्ड टाइम है। थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल लाइफ हम फिर से जीना शुरू करें। थोड़ा शायद वक्त लगेगा लोगों को वापस आते, बिल्कुल। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि लोग वापस आएंगे। डेफिनेटली।
रमजान, लास्ट सवाल पूछूंगी, कभी आपने अपनी जान लेने की कोशिश करी? हाँ करी थी। क्यों? जब मैं सिर्फ 18 साल का था, ऐसे लव अफेयर। ठीक। तूने अभी लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि अपनी जान मत ले, पीछे से लोग खड़े रह जाते। तो अगर उस रमजान को तू आज मिले जो उस दिन चला था अपनी जान देना, उसे क्या कहेगा? ये वो शायद वो टीन एजर्स का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा अलग ही कुछ ज्यादा ही अलग होता है। सोचने की क्षमता बहुत कम होती है, अपने आप पे खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। हाँ वो मेरे से भी हो गया था, बट खुदा ने फिर भी मुझे जिंदा रखा है, अभी मैं बच गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए लोगों को। मैं तो नहीं कर पाया था, बट फिर भी मैं अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ। तो बस यही है कि ऐसा ना करें, तकलीफ हो जाती है लोगों को। रमजान, सेकंड चांस मिला है तुझे, और शायद बहुत सारे सेकंड चांसेस मिले हैं। और चांस ऐसे ही नहीं मिलता, जरूर उसकी कोई रीजन होती है। अगर खुदा तुझसे पूछे कि मैंने तुझे चांसेस एक नहीं, एक से ज्यादा दिए, तो तेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इस टाइम? खुदा ने मुझे सेकंड चांस दिया और मैंने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। मैंने मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से बड़ा कर रहा हूँ। मैं मेरी फैमिली को देख रहा हूँ। जो जो मेरे मेरे तरफ जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बहुत अच्छे से निभाता हूँ, जिससे मुझे लगता है। बट हाँ, मुझे लगता है सही है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली को देखता हूँ अच्छे से, मेरे मम्मी पापा को अच्छे से देखता हूँ, मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा हूँ ना आगे के लिए, कि उनको अच्छा इंसान बनाना, उनको अच्छे बुरे की समझ आनी चाहिए, उनको समझा रहा हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो खुदा ने मुझे सेकंड चांस दिया है, मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ और करता रहूंगा आगे। थैंक यू वेरी मच। आज thank you so much for taking my invitation. Thank you so much for giving us your insights, and thank you so much for being so honest. बहुत बहुत शुक्रिया, and hope to यही कहूँगी, प्रेयर करूँगी कि बहुत जल्दी ये वक्त जो है सबके लिए खराब वक्त है, ये गुजर जाए और अच्छा वक्त फिर से आए। Thank you so much. So this is what I presented Ramzan Khan right now. And if you guys have any questions, he's right here with us. And that's obviously not in recording, and you can ask him questions, because he was so shy. He said, "Main aise nahi aunga," and he wasn't going to be on the Zoom even today. So I'm very grateful to him that he braved it. And जब आप किसी चीज से डरते हो ना, और उसको आप ब्रेव करके आगे निकल जाओ, तो एक माइलस्टोन क्रॉस कर जाते हो। I really acknowledge Parul for putting everything down in the chat. I'm really, really grateful. Thank you, Parul. If you can continue doing this for Mr. Lakshman Bhandari also, I will be really, really grateful. Yes, So, ma'am. thank you. तो सवाल किसी के पास है, या कोई फीडबैक देना चाहता है रमजान को, कोई कुछ बोलना चाहता है उसको, because this was for him a very big thing to sit across the camera and talk to you. Do you have any question, any feedback to give him, anything to say to him? Yeah, I know. I would like to say. Thank you. That Ramzan, first and foremost, his name is only so pak, and he's really a very, very pure-hearted guy. I have met him, and I have never looked at him, and nor have you ever, Anu, treated him like a driver. He's more than that. He's a family.
and he instantly makes everybody else her family. Like, he eases that thing. I've seen him so many times, I've interacted, and every time you have new set of people come into your classrooms and you have new people come, I think he's got that one wonderful quality of that humility is there, that smiling face is there. He's got immense talent, he's got immense strength. ओनली थिंग इज रमजान अपने आप पे डाउट ना रखे किसी चीज का कि मैं ये कर, आप में वो सारी क्वालिटीज हैं, तो डाउट को अलग रखिए और आगे बढ़ते जाइए. थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल नोइंग यू. आपको जानना, आपसे बात करना, आप हमारी जिंदगी में हैं, हम खुश नसीब हैं. थैंक यू. Thank you, Nev, for that. थैंक यू सो मच डॉक्टर निवेदिता. मैं जरूर आगे से ऐसे ही करूंगा जैसे आपने बताया अभी. Thank you. Wonderful. Thank you, Ramzan. Anybody else wants to share anything? Hi Anu, Nutan here. Hi, Nutan. Ramzi, I remember. Ramzi? Yes, I call him Ramzi since I heard you saying that. Oh yeah, we And don't I call him remember- Ramzan. We call him Ramzi, by the way. Ramzan. I remember हम लोग family constellation कर रहे थे, and that fellow was there. Yeah. And the of course moment he he entered the constellation, it completely changed, and I was like, wow. He's so lucky that he could, stay with Anu and learn so many things, yeah. And I'm sharing this from my bottom of my heart. He is a genuine, a gem of a person. I have Yes. seen him personally. He is amazing. Thank you so much, Ramzan, for being there with Anu and with all of us. Thank you so much for sharing your story. Thank you so much. Thank you so much. Anybody else wants to share? Parul, you want to say something? Anu, can I say something? Please go ahead. Sorry. Please go ahead. Archana, please go ahead. रमजान, हाय अनु. रमजान, आपको देख के सुन के मजा आ गया. वाकई में मैं मतलब दिल की बात बोल रही हूँ आपको कि एक होता है ना कि हम लोग जब मिलते हैं लोगों से तो कई बार हिचकिचाहट होती है, लेकिन आपको मिलके और आज जो आपका एक्सपीरियंस, आपकी बातें सुनकर हर तरह से मतलब आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप इतने अच्छे इंसान हो. आपने इतनी शायद मेहनत करके इतना कुछ सीखा है. यू आर अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. आपने मेरा नजरिया बहुत चेंज किया है और लोगों के लिए. थैंक यू वेरी मच रमजान. वेलकम. Thank you, Archana, for that feedback. Anybody else wants to share? Ramzan said I have also met with Ramzan. Of course you met. Really, तो Ramzan, you remember me, हो? या हाँ. तो अच्छे से जानता हूँ आपको. Meeting you here, रमजान, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा. You are so kind-hearted person and एक अच्छी आपकी बात लगी, acceptance है आपकी उसके अंदर कि आप चीजों को accept करते हैं और go with the flow. So that is really amazing. And आप अनु जी के साथ हैं तो definitely you don't not to worry anything. So और सबसे अच्छा है कि आप चीजों के साथ वक्त के साथ आप अपने आप को करते हैं और आपकी story really very inspiring. Thank you so much for sharing this wonderful story. And I wish you all the best and pray for you to success. You get whatever you want to get in your life, you will get it. Thank you so much. Thank you so much. लक्ष्मण जी, काश ये आपको पहले मिल जाते तो एटलीस्ट रेसलिंग तो कर ही सकता था ये. जरूर, इसको खिलाड़ी तो हम बनाए था, चैंपियन तो मैं बनाए देता. Very good. Anybody else wants to say something? Thank you for. Can I say, ma'am? Please go ahead, Sarita. So I met Ramzan in Family Constellation in Bombay. So he is kind of a person I didn't knew that. I just thought, who is he? And he came on the second day, and he has a lot of positivity. And उसने सबको इतना comfortable feel करवाया. ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं just अभी उनसे मिली हूँ. And he is a kind of a person who is very pure-hearted. And आज मैं सेशन लेट ज्वाइन करने वाली थी, पर मैंने देखा अरे रमजान का सेशन है, जल्दी ज्वाइन करती हूँ. So I joined and I really felt very nice. उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, and his story is really inspiring, and it really takes guts to speak in front of so many people, and I'm really proud of him, and I'm very happy to listen whatever he has shared. Thank you so much, Sarita. All the best. Thank you so much. Anybody else wants to share? Anybody else wants to share? Okay, wonderful.
So Ramzan, you want to say something? Unmute करके, I'm sorry, अपनी खिड़की हटा के ताकि हम देख सके तुझे, एटलीस्ट लोगों को कुछ तो कह दे, अपनी शक्ल तो दिखा दे. ओके ओके, एक मिनट. बाल कोम करने गया है. Yeah, hi guys, hi everyone. हम Thank you so much. देख नहीं सकते. Hi guys, hi everyone. Thank you so much. आप सब लोग ने ज्वाइन किया, आपने सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी. I love it. और मैं इस चीज पे जरूर ध्यान दूंगा, अपना कॉन्फिडेंट लेवल गिरने ना दूंगा मैं जरूर. और ये कोविड-19 का टाइम है, बहुत ही टफ टाइम है, तो प्लीज सबकी मदद करें. इंशाल्लाह तुम्हारे साथ भी जरूर बहुत अच्छा होगा. थैंक यू थैंक यू रमजान. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.